इतनी इतनी मुश्किल फिल्म शमशेरा थी फॉर मी एज एन एक्टर, मेंटली, फिजिकली. There are a lot of elements and dynamics that come into play. Of course, first being the story. बीबी को पहले टाइम जब आप होल्ड करोगे तो जो इंस्टिंक्टिवली जो आएगा, आई थिंक दैट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट. हमने बहुत नाम सोचे हैं, आर से भी और नॉन आर से भी. शमशेरा का ट्रेलर देख के आप उसको किसी फिल्म से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा मानना है हमने जो फिल्म बनाई है उसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है. शमशेरा इज़ अ वेरी न्यू एनिमल. मैंने कभी ज़्यादातर किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा है अपनी फिल्मों में. इसमें तो मैं बहुत कुछ कर रहा था. आई वॉज जस्ट कर्सिंग करण मल्होत्रा इन माई हेड कि मेरे से क्या करवा रहे हो और भगवान आप कौन सी परीक्षा ले रहे हो मेरी. Hi, I'm Vani Kapoor. Hi, I'm Karan Malhotra. नमस्कार, दिस इज रणबीर कपूर एंड यू आर वाचिंग अस ऑन फिल्मी बीट. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका. स्वागत है आपका फिल्मी बीट में. वेल दोस्तों, भारत के अगर हम इतिहास देखेंगे तो आज़ादी के लिए लोगों ने दी है कई कुर्बानी. इसी बीच शमशेरा लेके आ रहा है अपनी कहानी. तो चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी. लेट्स वेलकम द टीम शमशेरा. सो वी हैव कैप्टन ऑफ द शिप करण मल्होत्रा सर, अलॉन्ग विद द हार्ड वर्किंग दीवा वानी कपूर एंड द बॉलीवुड हार्टथ्रॉप रणबीर कपूर. And we have Monica, our darling. Yes. Thank you so much. So firstly, congratulations. Ranveer, double congratulations to you. So starting with you, since we know कि आप 4 साल के बाद आ रहे हो, आपकी लास्ट फिल्म बायोपिक थी संजू एंड नाउ द फ्रिक्शनल वन. सो अगर कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा टफ है, प्लेइंग द फ्रिक्शनल कैरेक्टर और प्लेइंग अ बायोपिक? जब मैं संजू कर रहा था, इट वॉज वेरी हार्ड टू प्ले somebody who's still so relevant, who's still so loved and who's still so known. Every mannerism of his, every incident of his is largely known by people. तो वो बहुत मुश्किल था. and I thought कि मुझे इतनी मुश्किल फिल्म कभी आएगी नहीं लाइफ में. टट्टू शमशेरा मेरे लाइफ में आई and that felt like an ad film. इतनी 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 मुश्किल फिल्म शमशेरा थी for me as an actor, mentally, physically. But I'm very excited कि I got to play 2 parts in a film like Shamshera, and I'm very, very, very excited for the audience to see it. Okay, Vani, coming to you, since we know कि आपकी लास्ट फिल्म चंडीगढ़ कड़े आशिकी was amazing and now this. So क्या कुछ आप चूज करते हो, like when it comes to script or the playing character? तो first, what is your thought? How you choose your script? Story, of course. The script needs to work for me. My part needs to, then I see what my part is like in a film. There are a lot of elements and dynamics that come into play. Of course, first being the story, the director, his vision, his aesthetics and sensibilities, the team who's come together, all of these things kind of like contribute to the film. And I think I'd signed Shamshera way before Chandigarh also came into my life. So, yeah. Alright, coming to you, the vision which you have like seen for the Shamshera and the outcome, are you satisfied with it? More than satisfied, because I think it's gone beyond my expectations. Okay. Was Ranveer your first choice? Absolutely was. And I'm fortunate to have him for the film. He said yes, and it was a dream come true for me to work with an actor like Ranveer. And it was immediate. The moment I read the script, मतलब it just happened like this. Yeah, it was like that. It was, क्योंकि नॉर्मली जब एक्टर कहता है ना कि 2 दिन में बताता हूँ, हाँ. इसका मतलब होता है बाय बाय. But fortunately, Ranveer heard the narration and he was immediately on board. And then we started preparing for the film. Okay, coming back to you, Ranveer, since we know like अभी शादी हुई है, ये साल काफ़ी स्पेशल है आपके लिए. But since I have this question, we have seen जो legacy आपकी कैरी हुई है, like दादा हो गए, डैड हो गए, आप हो गए, सबका नाम आर से ही है. So can we say आपकी जो बेबी होगा उसका भी नाम इनिशियल विल बी द आर, और एनी नाम अगर आपने कुछ सोचा हो तो? हमने बहुत नाम सोचे हैं, आर से भी और नॉन आर से भी. हम अभी एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे कि जब करण's baby was born, he was blessed with a baby girl. And he had also very different list of names. But जब आप बेबी को पहले टाइम जब आप होल्ड करोगे तो जो इंस्टिंक्टिवली जो आएगा, आई थिंक दैट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट. बट हमारा आर्सेनल रेडी है with all the names, but we'll see, what personality suits what. Alright, and Vani, आपसे जानना चाहूँगी, what is the takeaway? And since we know, okay, so what is the takeaway जो आप लेके जा रहे हो, और कितना आपने इसमें अपना इनपुट डाला है? Since we know horse riding सीखी है, उसके अलावा और what else you have learned? What else I've learned? Yeah. There's a lot of silent learning, active learning that's happened, subliminal learning, which I think happens every single day. You're on set, you have so much to observe, learn, and get that exposure. This life, one is not sitting and dreaming about or living, in your real life. So this kind of exposure as an actor, I think, which is why I feel like I'm blessed that I get to live this life. There's so much that
I'm getting to experience with every different project, and here I have a Karan Malhotra, I have a Ranveer, I have Sanjay sir. Everybody coming with such phenomenal experiences in films and kind of craftsmanship that they have, they already adorn. For me, it's all about observing right now, and I'm trying to make the most of it. ऑलराइट एंड सिंस वी नो कहीं ना कहीं इसको कंपेयर कर रहे हैं थग्स ऑफ हिंदुस्तान से, बिकॉज वो भी एक ऐसी स्टोरी लाइन थी अबाउट द डकैट एंड द जो ब्रिटिश आर्मी यही सब, सो कितना डिफरेंट है एंड व्हाट इज योर विजन, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? Honestly, I don't have anything very interesting to say about this comparison, because I think comparison तब होना चाहिए जब दोनों फिल्में देख ली गई हैं. शमशेरा का ट्रेलर देख के आप उसको किसी फिल्म से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा मानना है हमने जो फिल्म बनाई है उसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है. शमशेरा इज़ अ वेरी न्यू एनिमल. Having said that, audiences हैं, our work is for public domain, तो कमेंट्स होंगे, कंपैरिजन्स होंगे, वो सब सारा आंखों पर. लेकिन मैं होप करता हूँ कि जब फिल्म देखें तो उसे अपने मेरिट पे देखें, उसे एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की तरह देखें, एंड उसको उसी के काबिलियत पर परखा जाए. करेक्ट. एंड वेल आपसे तीनों से जानना चाहूँगी, जब भी आप फिल्म एक शूट करते हो एंड व्हेन इट कम्स टू प्रमोशन, ज़्यादा टायरिंग कौन सा होता है, सेट पे शूट करना या उसके बाद जो प्रमोशन करना? प्रमोशन. I second that. ओके. एंड जिन आपसे जानना चाहूँगी, द ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने की है आपकी बॉडी को लेके, आप फिजिकली जितना मेहनत किया, क्या मतलब दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म जिसके लिए आपने इतना दिया अपना इनपुट? नहीं, आई थिंक मैं हर फिल्म के लिए देता हूँ, बट ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे किरदार मैंने प्ले नहीं किए. संजू के लिए भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा मैंने उस प्लेइंग द संजू बायोपिक. बट शमशेरा क्योंकि एक एक्शन फिल्म थी, मैंने कभी ज़्यादातर किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा है अपनी फिल्मों में. इसमें तो मैं बहुत कुछ कर रहा था, तो उसके लिए अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इवन टू गेट द राइट एस्थेटिक्स ऑफ एक्शन, उसकी इतनी रिहर्सल्स होती थी. वी हैड अ ग्रेट टीम इन परवेज भाई, इन फ्रांसिस, हु इज़ स्टंट कोऑर्डिनेटर, यू वुड कॉल हिम अ स्टंट कोऑर्डिनेटर फ्रॉम साउथ अफ्रीका. तो हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एंड आई थिंक करण बहुत क्लियर था एक्शन के बारे में. एंड आई मस्ट ऐड कि एक्शन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस को डिज़ाइन करो विदाउट हेड और टेल, विदाउट इमोशन, विदाउट स्टोरी, फिर वो एक्शन में इतना मज़ा नहीं आता. आई थिंक एवरी एक्शन सीक्वेंस ऑफ शमशेरा वॉज लीडिंग द स्टोरी अहेड. जैसे हम हिंदी फिल्मों में जब हम गाने बोलते हैं कि जब गाना आता है तो फिल्म रुक जाती है और एक गाना, एक ड्रीम सीक्वेंस चल रहा है. यहाँ वो बात नहीं थी. अगर गाने हैं या एक्शन है, हमेशा शमशेरा की कहानी आगे बढ़ रही है. एंड आई थिंक दैट वाज वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी न्यू. बट बहुत मज़ा आया. बहुत, मेरी पूरी बॉडी टूट चुकी थी. मैं घर जाता था और मतलब आई डेंट वांट टू टॉक टू एनीबडी. आई वाज जस्ट कर्सिंग करण मल्होत्रा इन माय हेड कि मेरे से क्या करवा रहे हो और भगवान आप कौन सी परीक्षा ले रहे हो मेरी. बट आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट वाज ऑल वर्थ इट. मेकिंग मूवीज़ इज़ वेरी हार्ड. जब आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हो तो आपको थोड़ा ग्लैमरस वैमरस लगता है, बट आई थिंक हर फिल्म के पीछे इतनी मेहनत जाती है, सो मेनी आवर्स of mental strength, of physical strength, of dedication, of sacrifice, तभी जाके कुछ रंग लाती है. And I think Shamshera is a result of a lot of hard work put. ऑलराइट. सो लास्टली जाने से पहले क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो ऑडियंस और व्यूअर्स को, व्हाट डू यू हैव टू से? यही कि शमशेरा 22 जुलाई को रिलीज़ हो रही है. ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने लोगों के लिए एक शक्ति, एक ताकत बन जाता है, और उसका नाम सिर्फ उसका नहीं रहता. वो एक सोच, एक अभियान बन जाता है, और इस अभियान को पूरा करना किसी भी कीमत में शमशेरा की कहानी है. सो प्लीज़ वॉच इट एट अ सिनेमा नियर यू ऑन 22 July. Thank you so much guys. All the best. Looking forward. Thank you. Thank you.